सो आज मैथ्यू से जूनी करार और नया करार की जो अंतर है बहुत अच्छी तरह से हमको ब्रदर ने समझाया. So, Brother Matthew has explained us very nicely the difference between the old covenant and the new covenant. या हम इसको समझना बहुत जरूरी है कि जब हम नया करार में जीते हैं और जूनी करार की स्टैंडर्ड्स क्या है और नया करार के स्टैंडर्ड्स क्या है हमको समझना बहुत जरूरी है. So when we are living in the new covenant, it is very important for us to understand what is the difference between the old covenant standards and the new covenant standards. So जब इसके अंदर अंतर को समझेंगे तो आप नया करार के हिसाब से चलने के लिए और आपको मदद मिलेगा परमेश्वर की ओर से. And if you understand what is the difference between the two covenants, then it will be more easy and God will help you to walk in the new covenant. Yes. 2 Corinthians 3 और 3 में लिखा है कि जूनी करार की जो नियम से वो पत्रों पर लिखा गया है और नया करार में परमेश्वर कहता है कि मैं अपने हृदय पर लिखूंगा. It is mentioned in 2 Corinthians chapter 3 verse 3 that the new covenant has been written in the on the hearts of the people, but the old covenant has been written on stone tablets of stone. So जूनी करार ऐसा है एक मृत्यु लाने वाली एक सेवकाई है, लेकिन नया करार की जो हृदय पर लिखने वाले वो जीवन लाने वाली सेवकाई है. So the old covenant is a ministry that brings forth death, but the new covenant is a ministry that brings forth life. या रोमन्स 7 वर्स 8 से 9 पढ़ेंगे तो वहां पौलुस का कुछ अनुभव बताता है कि पौलुस खुद यही एक जुना करार के अंदर जन्मा था. And if we read from Romans 7 verse 8, then it says that that Paul was a man who was living under old covenant. Yeah, verse 9, can you sister read, sister? Yeah, brother. Romans 7 verse 9 says, once I was alive apart from the laws, but when the commandment came, sin sprang to life and I died. तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि एक समय था मैं जन्मा था लेकिन जुना करार के अंदर जन्मा था. So here Paul is saying that there was a time when I was living and I had been born in a time when at the time of old covenant. जब तक वो मसीह पर भरोसा नहीं रखा तब तक उसको पता नहीं चला कि मैं उसके अंदर हूँ. Until the time he trusted the Lord and believed on Jesus Christ, he was not knowing that he was living under old covenant only. तब तक उसने समझा कि उसके अंदर जीवन थे, लेकिन बाद में उसको पता चला उसके अंदर एक्चुअली मृत्यु थी. लेकिन बाद में उसको पता चला कि मसीह के विश्वास करने के बाद जो प्रभु उनके जीवन में जो जीवन लाया. Till that time he was thinking that he has life in himself, but when he really believed on Jesus Christ, that time he realized that he did not have life in himself, but only death was there in him. So verse 10 में लिखा है कि जो जीवन लाने वाली जो आज्ञा है वो मेरे लिए मृत्यु लाई. उसको पता चला कि जो जीवन लाने वाली वो जूनी करार मेरे लिए मृत्यु लाई. Verse 10 sister. So the verse 10 of Romans 7 says that I found that the very commandment that was intended to bring life actually brought death. So पौलुस को पता चला कि पाप क्या है उस जुना करार से ही पता चला और लॉ से ही पता चला. तो उसमें कोई गलती नहीं था, लेकिन उसके द्वारा हमारा हालत पता चलता है. So Paul realized what is actual sin, and he realized that from the old covenant itself, and in his own condition he realized. So पौलुस मानता था कि 9 कमांडमेंट 9 नियम तक उसे सब कुछ पालन किया, लेकिन 10वां नियम जब पालन करने आया उसमें लिखा है कि किसी का चीज लालच नहीं करना. तब तक उसको पता नहीं चला कि पाप क्या है असली में. So Paul was obeying all the nine commandments of the old covenant, and till the time he came to know and regarding the 10th commandment, which says that you should not covet anything of your brother. That till that time he was thinking that he was following the life. परमेश्वर उस नियम को इस्तेमाल किया ताकि हमको पाप क्या है पता चले.
And Lord used all those commandments so that we will understand what is sin actually. जैसे कि मैं घर से बाहर निकलते समय तैयार होने के बाद एक बार आईना में देखता हूँ, मैं मेरा कपड़ा सही है, मेरा दांत सही है, आंख सही है, बाल सही है, सब कुछ देखता हूँ आईने में। वो पता चलता है कि मुझे सब कुछ ठीक है। ये सब मैं उस आईना के अंदर देखेगा तो ही मुझे पता चलता। And for example, when I leave my home and I want to go somewhere, that time I look at the mirror and see whether my hair are proper, whether my teeth are proper, everything is proper in me. And by looking at the mirror only, I realize whether there is any problem or am I fine. Then मुझे कुछ ठीक करना है, कुछ सजाना है या सही करना है, उसी के द्वारा पता चलता है। लेकिन वो आईना मुझे कुछ भी साफ नहीं कर सकती। And whether I need to amend something or do something regarding my looks or make it proper, that I realize only by looking at the mirror. But the mirror in itself cannot help me in any way. But वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरा हालत बताने के लिए बहुत मदद करती है। But for me, the mirror is very helpful to tell me regarding my exact position. उसके बिना मेरा हालत पता भी नहीं चलेगा। And if it is not there, then I will not even come to know regarding my exact position. लेकिन ये जो आईना है, जो जुना करार के आईना वैसा है, ये खाली एक पत्रों पर लिखा गया है, एक जगह पे फिक्स किया गया है। But this the mirror of the old covenant, these things have been written on the tablets of stone, and and they are fixed at a place. और उसमें एक इंक के साथ लिखा गया है। And they have been written via some ink. लेकिन जब नया करार में आते, परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदयों पर लिखेगा। But when we come to the new covenant, then the Spirit of the Lord Himself writes these laws in our hearts. Yeah. So वहां पर 3:3 में आगे बी पार्ट में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा जो हमारे हृदय की पटे पर लिखेगा। Second Corinthians 3:3 sister. Yeah, so it is mentioned in 2 Corinthians chapter 3 verse 3 that the Spirit of the Lord will Himself write upon our hearts all these things. So पौलुस को एक अनुभव मिला कि अभी मैं जुना करार में जन्मा हूं, लेकिन उसमें से कुछ अनुभव नहीं मिला। लेकिन जब नया करार में आते हैं, उसको कुछ अनुभव मिला। ये अनुभव मिला कि अभी जो कुछ भी मैं करता हूं, मेरे बल से नहीं, मेरे अंदर जो प्रभु काम कर रहे हैं उसके द्वारा। But later that when Paul realized and he experienced the new covenant life, then he realized that whatever he is doing, he is not doing on his own capacity, but it is the Spirit of the Lord which is doing that certain thing in his life. 3:5 एक बार पढ़े sister. Yeah. 2 Corinthians 3:5. Yeah. Not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. Yeah. और verse 6, हमें नया करार की जो सेवक बनाने का सामर्थ्य मुझे वहां से नहीं मिला, मुझे जो प्रभु की आत्मा के द्वारा मिला। तो उसका अनुभव में और भी बताते हैं। Then later in verse 6 it says that to be ministers of the new covenant, we did not it is not of the letter but of the Spirit. ब्रदर्स, मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ इस वचन को। जब मूसा उस पर्वत से नीचे आया था, आप सभी जानते हैं उसकी मुहरा एक कपड़ा से ओढ़ा गया है ताकि लोग देखकर भयभीत ना हो। And brothers and sisters, I want to emphasize on this fact that when Moses came down from Mount Sinai, that time he had to cover his face by a cloth so that people would not be fearful when they look upon his face. और वो जो महिमा है, जो उसके अंदर महिमा है, वो हट जाने वाली महिमा है। लेकिन वो मूसा सोचा कि लोग उससे भयभीत हो जाएंगे करके उसने एक कपड़ा ओढ़ा था। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे, लेकिन मोसेस उस कपड़े के अंदर जो महिमा है धीरे 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 कम होते गया। वो जुनी करार की महिमा है। So that the glory of the Lord which was being revealed from Moses' face was a glory that would slowly will go away, but and Moses was knowing this fact, and but still he had to cover his face through a veil.
and the same way the old covenant glory is it represents the glory which slowly fades away. वर्स 3:10 में लिखा है कि जो महिमा है, जो 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 पूर्व जो महिमा है, अभी का महिमा उसकी तरह नहीं है. And it is mentioned in verse 10, for what was glorious has no glory now in comparison with the surpassing glory. या वर्स 11, जो खत्म होने वाली महिमा जो है, लेकिन अभी जो महिमा है और हम जो परमेश्वर में नया करार में देने वो कितना बड़ी है. And in verse 11, and if what was transitory came with glory, how much greater is the glory of that which lasts. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब मूसा उस पर्दा जो डाला गया है, देखो वचन में लिखा है कि जब कभी हम प्रभु की ओर मुड़ते हैं वो पर्दा हट जाता है. वर्स 16 में लिखा है. So brothers and sisters, the veil which Moses had covered his face with, and in the New Testament it is mentioned that when we turn to the Lord, the veil is it has been lifted. या वर्स 16 एक बार पढ़िए सिस्टर. Yeah, it is mentioned in verse 16, but whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. या अभी वो मूसा जो ओढ़ा था वो जो पर्दा, और जब हम प्रभु की ओर हम लोग पूरी मन फिराव कर कर प्रभु की ओर मोड़ते हैं, वो पर्दा जो है परमेश्वर हमारे बीच में वो हट जाएगा. So the covering which Moses had covered his face with, and now in the new covenant, when we fully repent and turn to the Lord, then that veil is now taken away. So ये एक कितना अद्भुत बात है जो पर्दा हटाने का काम जो परमेश्वर करते हैं. और हम जानते हैं कि उस मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक वो फटा गया है, ना कि नीचे से ऊपर. So this is very amazing thing that God does in our lives in the new covenant, and God himself is doing, and we have seen that in the new covenant the veil of the that comes in between the temple and us is now it is torn down from up to the bottom. Yeah, not from bottom to up. Yeah, and not from bottom to up. So ये जो काम है परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं, जो नया करार की जीवन जीने में. And this is the work that the Lord is doing when we live in the new covenant. लेकिन कब? जब आप परमेश्वर की ओर मुड़ता है. But when it is only when you turn to the Lord to live according to his ways. या आपने कुछ छोटी सी पाप किया, तुरंत आप इमीडिएटली परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, वो पर्दा हट जाएगा. छोटा सा झूठ बोला, परमेश्वर के पास जाकर कबूली करेंगे, वो पर्दा हट जाएगा. किसी को धोखा दिया है, आप खंडन में नहीं रहने का, बोलने का प्रभु मैंने एक काम किया है, तो परमेश्वर हटा देगा सब, तुरंत जाने का परमेश्वर के पास. When we do any sin, or for example, when you tell a lie and go to the Lord and repent of that sin, then the veil is quickly lifted away. In the same way, when you are angry or when you do any kind of sin and you turn to the Lord, that time the veil is quickly lifted away. या एक वचन में लिखा है कि जब कोई मेरे पास आता है, उनको कभी मैं नहीं टुकड़ाऊंगा, कभी मैं ना करूंगा. And it is mentioned in the word that whenever someone comes to me, I will never forsake that person nor leave that person. कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं. And it is mentioned that never, never and never. लेकिन एक मन रखने का कि मैं पूरी दिल पश्चाताप के पूरी दिल से मैं परमेश्वर की ओर फिरूंगा. But we have to believe in that and we have to do one thing, that we have to believe in the Lord, trust in the Lord with all our heart. तो धन्यवाद करता हूँ जो ये जो न्यू कवनेंट और ओल्ड कवनेंट के बारे में जो हम सुन रहे हैं, मेरे जीवन में बहुत ही एक आजादी लेकर आया. और क्योंकि मैं देखता था कि मेरा क्रिश्चियन लाइफ बहुत एक हैवी जैसा था, एक बर्डन. सो मैं सोचता था कि प्रभु ये मैं कैसे ये सब वचन तेरा इतना वचन कैसे मैं फॉलो करूं. बट मैं आज ऐसे टेस्टिमनी, और मैं बताना चाहता हूँ कि हम सब प्रभु का इच्छा है, हम सब एक न्यू कवनेंट एक प्रभु चाहता है कि सभी जन ऐसे जिए. और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रभु सबको देना चाहता है, लेकिन अगर हम
उसको ढूंढेंगे मन से, प्रभु में ऐसा ये लाइफ ऐसे क्यों है अभी भी, हम ढूंढेंगे प्रभु को तो परमेश्वर हमको मिलेगा। और जब मैंने देखा कि प्रभु मेरे अंदर इतना सारा जो मेरे को लगा कि प्रभु मैं ये नहीं कर सकता हूँ, और वो चीज प्रभु ने मेरे अंदर किया है, मेरे एबिलिटी से नहीं, बट प्रभु ने मुझे अनुग्रह किया है करने के लिए। तो मैं देखता हूँ कि और परमेश्वर का वचन इस तरह भी बोलता है कि ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूँ। अगर हम हमारा एक क्रिश्चियन लाइफ एक बोझ प्रभु में नहीं कर पाते, बोझ जैसा लग रहा है मुझे, तो मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर हमको वो विश्राम देना चाहता है। और ये एक न्यू कवनेंट लाइफ में हम प्रभु हमको देना चाहता है। अगर आप हम देखें, हमने पूरा ब्रदर मैथ्यू ने जो एक्सप्लेन किया, ऐसे भी हो सकता है कि ब्रदर मैथ्यू और जैक अंकल जिस तरह एक्सप्लेन किया हम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा जीवन हम जी सकते हैं। हो सकता है मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, मैं कितना सारा चीज मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बट मैं देखता कि परमेश्वर अमेजिंगली मेरे जीवन में काम कर रहा है कि वो मुझे बोझ नहीं है, बर्डन नहीं है, बट मेरा क्रिश्चियन लाइफ एक एक्साइटेड, एक जॉयफुल, जैसा हमने रोमन्स 14 में पढ़ा कि परमेश्वर का राज खाने पीने का नहीं, बट किंगडम ऑफ गॉड इज राइचियसनेस, पीस एंड जॉय। वो परमेश्वर का राज हमारे दिल में रहेगा, हमको बर्डन नहीं लगेगा प्रभु मुझे ये करना है वो करना है, एक शुद्ध जीवन जीना है, नहीं। अब एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं खत्म करना चाहता हूँ। कितने लोग ऐसे ब्रश करने के लिए बहुत मुश्किल लगता है, हम सब बड़े लोग की बात कर रहा हूँ मैं, ब्रश करना किसका मुश्किल लग रहा है? आई होप किसी को नहीं लगता रहेगा, किसी को नहीं लगता रहेगा ब्रश करने के लिए। बट जब हम छोटे थे, अगर हम मम्मी डैडी को पूछेंगे, मेरे को बहुत सारा तकलीफ है, ब्रश करो ये करो, बट आज हमको सवेरे उठे हमको पता है कि मुझे ब्रश करना है। सेम एग्जैक्टली परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, हमको मुश्किल नहीं लगेगा। और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मैं 6th फ्लोर पे रहता हूँ, अगर 6th फ्लोर पे अगर मुझे ऊपर आना है, अगर मैं सीढ़ी लेकर चलूंगा मैं थक जाऊंगा। मैं अरे यार मुझे 6th फ्लोर मुझे चलना है या 19th फ्लोर चलना है, कितना मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, कितना पसीना बहाना पड़ेगा। बट अगर वही चीज में अगर लिफ्ट लेके आऊंगा ऊपर से, कितना मेहनत है, कितना पसीना बहाना पड़ेगा। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, परमेश्वर हमको कौन सा स्थान पे लेके जाना चाहता है, तो यही चीज है। तो परमेश्वर हमको न्यू कवनेंट, ओल्ड कवनेंट ऐसा था कि हमको खुद को मेहनत करना है, कैसी तरफ पहुंचना है, बट न्यू कवनेंट लाइफ यीशु मसीह के द्वारा जो हमको सिर्फ हमने विश्वास करना है, उस पर लीन होना है, तो प्रभु हमको लिफ्ट करेगा, ऊपर लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, ये गुड न्यूज है मेरे प्रिय भाई। बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि नया करार और जूने करार का जो अंतर है वो, और ये जब तक हम नहीं जानेंगे इसका अंतर, तब तक हम पॉसिबल है कि ऐसा ही ओल्ड कवेनेंट लाइफ अभी भी हम जीते रहेंगे अपनी लाइफ को लेकर। जैसा उन्होंने बताया था हजीरा के बारे में और सारा के विषय में, तो मुझे हमेशा एक चीज वंडर लगता है, अजीब लगता है कि मतलब परमेश्वर ने जब अब्राहम से वादा किया था कि मैं तुझे एक संतान दूंगा, उस समय तक कभी सारा ने अब्राहम से नहीं कहा कि तू हजीरा के पास जा और उससे संतान उत्पन्न कर। उन लोगों ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो उसको लगा कि मैं बांझ हूँ, अब्राहम बूढ़ा हो गया है, हमारे पास ताकत नहीं है। लेकिन एज सुन एज गॉड जब उसको प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे एक संतान दूंगा, तो तुरंत हम देख सकते हैं कि सारा के मन में एक आइडिया आ गया, और वो सोचती है कि हाँ परमेश्वर हमें संतान देगा, लेकिन हमसे देगा ऐसा नहीं लगता, वी शुड ट्राई, हम कुछ और सोचते हैं। तो उसने अपना बुद्धि वहां पर लगाया। हम देख सकते हैं उत्पत्ति अध्याय 16 में सारा अब्राहम को अपना बुद्धि बताती है। वो बोलती है परमेश्वर संतान देगा, हो सकता है, लेकिन वो हमको मेरे जरिए नहीं देगा, वो हमको हजीरा के जरिए देगा। तू हजीरा के पास जा और वहां से ये संतान उत्पन्न कर। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर
अपना दिमाग लगाया गया है, अपनी बुद्धि लगाई गई है और अपना प्रयास लगाया गया है। परमेश्वर ने उसको इस्माइल देने का वादा कभी नहीं किया था, परमेश्वर का वादा इसहाक का था। लेकिन अब्राहम और सहारा ये बात को समझ नहीं पाए, और जैसा सहारा ने कहा, बाइबल में लिखा अब्राहम ने वैसा किया और उनको पुत्र हो गया उनके प्रयास से। लेकिन फिर से 99 वर्ष में परमेश्वर अब्राहम के पास आता है और वही बात कहता है, मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे पुत्र दूंगा। तो अब्राहम बोला मुझे तो पुत्र हो गया है। तो वापस अब्राहम, हम देख सकते हैं गलाती अध्याय में, अब्राहम बोलता है कि मेरी अवस्था मरी हुई सी है, पूरी तरह मर चुकी है, सारा का भी गर्भ पूरी तरह से मरा हुआ है, बट स्टिल वो उसने विश्वास किया परमेश्वर पर। और वो कहता है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू अभी भी हमारे जरिए कर सकता है, तू अभी भी हमको संतान दे सकता है। तो परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार बराबर अब्राहम के पास आया था, बट सारा वेट नहीं कर पाई थी प्रभु का प्रॉमिस पूरा होने तक। सो वैसा ही हो सकता है कि परमेश्वर ने जो वायदा हमारे लिए किया है कि कोई पाप तुझ पर प्रभुता नहीं करेगा, आज अगर हमारे जीवन में देखेंगे मे भी शायद कोई पाप से हम डिफीट होते रहेंगे, बट प्रॉमिस प्रभु ने किया है, प्रभु उसे पूरा करेगा। दिस इज न्यू कवेनेंट। यही अब्राहम ने कहा। अब्राहम ने कहा कि मेरी अवस्था मरी हुई है, सारा की अवस्था मरी हुई है, लेकिन जिसने हमसे वादा किया है उसका प्रॉमिस मरा हुआ नहीं है, उसका प्रॉमिस जिंदा है, वो जीवित है और वो उसे पूरा करेगा। सी अब्राहम पुराने नियम का व्यक्ति था, लेकिन उसने ये जो बात कही ना कि परमेश्वर ने वादा किया वो उसको पूरा करेगा। दिस इज टोटली न्यू कवेनेंट। ये चीज नया करार है कि प्रभु ने वादा किया और प्रभु इसे पूरा करेगा। तो वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड ब्रदर्स एंड सिस्टर कि हम जब प्रयत्न करते, अपना प्रयास दिखाते हैं कोई भी चीज के ऊपर, गुस्सा हो या झूठ बोलना हो, या हम कई बार उसके ऊपर जय भी पा लेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से डिफीट हो जाएंगे हम। और ये मेरा भी खुद का अनुभव है कि मैं भी कई बार डिफीट हुआ जब मैंने प्रयास किया एक क्रिश्चियन लाइफ जीने के लिए और एक मसीह जीवन जीने के लिए। बट जब प्रभु हमको सहायता करता है दैट इज टोटली डिफरेंट। और जब प्रभु हमको मदद करता है तो हमको उसका प्रयास करने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि गॉड रियली चेंज आवर हार्ट। प्रभु हमारा मन को ऐसे बदल देता है कि हमको इतना परमेश्वर का भय रहता है और प्रभु के प्रति इतना प्यार रहता है कि वो करने का मन ही नहीं होता। एंड दैट इज व्हाट न्यू कवेनेंट इज। बाइबल कहता है मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन बदलता है। हाउ वुड वी नो कि हम नए करार में हैं? जब हम पूरी तरह अब्राहम के समान कह सकते हैं कि प्रभु ने मुझसे वादा किया और वो उसे पूरा करेगा। एंड व्हेन वी कैन सी दैट चेंजेस इन आवर लाइफ, वो जीवन को हम देख सकते हैं हमारे अंदर। सो वी हमको इस बात का पूरा प्रमाण मिलता है कि हाँ प्रभु सचमुच मेरे भीतर कार्य कर रहा है, मेरे अंदर चेंजेस हो रहा है, एंड गॉड इज वर्किंग इन मी। और वो ऐसा वचन कहता है जिसने मेरे अंदर भले काम शुरुआत किया वो उसे पूरा करेगा, ही विल डू इट। तो हमको वी हैव टू वेट। अगर हम सारा के जैसा घाई करेंगे और सोचेंगे नहीं प्रभु मेरे जरिए नहीं करेगा, प्रभु हमको कुछ और आइडिया करना पड़ेगा, हमको कुछ और प्रयत्न करेगा, और हम ऐसे चीज सोचकर जब वो करेंगे दैट इज नॉट गॉड्स प्लान। हम वो वापस से हमको ओल्ड कवेनेंट की ओर ले जाएगा। लेकिन हम अब्राहम के नाई जब कहते हैं कि लॉर्ड मेरी अवस्था मरी हुई सी है, आई कांट डू एनीथिंग विथ माय ओन स्ट्रेंथ, मैं चाहे कितना भी करूं लेकिन मैं आपको कभी प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा अपने एफर्ट से, लेकिन प्रभु आप मेरे भीतर कार्य कर सकते हो, आप मेरे भीतर चेंज कर सकते हो, आप मेरे मन को बदल सकते हो, आप मुझे नया बना सकते हो। और ये बात जब हम कहते हैं और हम पूरा भरोसा करते हैं कि लॉर्ड इज गोइंग टू डू चेंजेस इन आवर लाइफ, हमारे जीवन को बदलेगा, हमारे बोलचाल को बदलेगा, हमारे स्वभाव को बदलेगा। और ये चीज बाइबल कहता है अब्राहम के लिए धार्मिकता गिनी गई। और वहां पे और ऐसा भी लिखा गया है जो लोग अब्राहम के कार्य को देखकर वैसा ही प्रभु पर विश्वास करते, ये सारे बातें सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं, जो लोग विश्वास करते उन सबके लिए धार्मिकता गिनी जाएगी। दिस आर वर्ड्स ऑफ गॉड। ये प्रभु के वचन है जो कभी टलेगा नहीं। हमें धर्मी ठहराने के लिए हमारा कर्म कुछ काम के नहीं, जैसा हमने सुना, इट्स ओनली वी हैव टू डिपेंड ऑन गॉड कि प्रभु मेरे अंदर कार्य कर रहा है, प्रभु मेरे, हमको रिलाय करना है। जितना हम ज्यादा डिपेंडेंट होंगे गॉड के ऊपर, वेट करेंगे, उसके प्रॉमिस के लिए वेट करेंगे, प्रॉमिस पूरा होकर आएगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन ऐसा है जैसा एक बाण में से निकला हुआ तीर, जो निकलता है और अपना काम पूरा करके ही आता है। तो गॉड ने हम सबसे वादा किया कि नो सिन शैल हैव डोमिनियन ओवर यू,
कोई पाप तुझ पर प्रभुता नहीं करेगा। श्योरली इट विल हैपन, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है, प्रभु ने अभी तक हमारे भीतर काम किया है, प्रभु हमको बदल रहा है, तो श्योरली ही इज गोइंग टू डू इट। हम उसके साथ चलना, उसके साथ विश्वास योग्य रहना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हमको उसके ऊपर भरोसा रखना और उसकी चाहत करना और उसके जैसा बनने की इच्छा हमारे मन में रखना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तब प्रभु हमारे भीतर काम करेगा। और जैसे आज हमने सेकंड क्रॉनिकल्स में सुना कि जब हम प्रभु को खोजेंगे तो वो अवश्य हमको मिलेगा, जब हम उसको ढूंढेंगे तो वो हमको प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम उसको त्याग देंगे, अगर हम नहीं चाहेंगे करना, तो वो हमसे दूर रहेगा, वो हमारे पास नहीं आएगा, वो कोई चीज का हमको जबरदस्ती नहीं करेगा। ही वांट कि हम क्या चाहते, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि हम कैसा लाइफ चाहते। डू वी रियली वांट टू चेंज, या हम सच में बदलना चाहते हैं, हम सच में प्रभु का भय मानना चाहते हैं क्या नहीं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वही गॉड हार्ट देखता है कि हमारे मन में क्या चलता है, डू वी रियली वांट टू लिव फॉर हिम। और ये नया करार सचमुच हमारे लिए एक आजादी का जीवन प्रभु ने लाया, क्योंकि हमने जैसा देख सकते हैं रोमन्स अध्याय 3 में, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, जैसे हमने लास्ट वीक पढ़ा था, एक भी नहीं, कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, एक भी नहीं। सो जब परमेश्वर ने देखा कि नो वन, कोई भी ऐसा एक जीवन जी के मेरे पास नहीं आ सकता, ओनली जीसस ने ऐसा एक लाइफ जिया ओल्ड टेस्टामेंट में, जिससे गॉड प्लीज था, ताकि हम तो कभी ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए गॉड की योजना थी कि हमारे लिए ऐसा कुछ करे ताकि हम सब उसके पास आए। ये इस बात का ऐलान करते हैं कि गॉड हमसे कितना प्रेम करता है, कि वो हमको नरक में जाता हुआ नहीं देखना चाहता, वो हमेशा हम पर दया करना चाहता है, कृपा करना चाहता है, और ऐसे एक जीवन में हमें लाना चाहता है जिसमें उसने हमें बुलाया है। तो मे गॉड हेल्प हम सबकी सहायता करे ऐसा नए करार का जीवन जीने और उसकी महिमा का कारण बने।